concentrate. So check everybody, what is journal? Now you can see what is journal. It is given meaning, definition, importance and utility of journal. Now whatever we learned right now by modern method and traditional method, now that is going to be recorded in the books of account. And these books of accounts are called as प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट. याद रखिए, जब भी आप पहली बार एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? जर्नल एंट्रीज. The same are called as journal entries. Whichever method you follow traditional method or you follow modern method. अब journal entry में करना क्या है? One account is debited, another one is credited, or two are debited, one is credited, or two are debited and three is credited. But ultimately for every debit there is an equal and corresponding credit. Hence total of all debits is equal to total of all credits. ये पक्का रूल है जर्नल में. जर्नल में करना क्या है? जर्नल क्या होता है बेसिकली? जर्नल इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट. जर्नल क्या है? अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट वेयर द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम in terms of debit and credit by following the double entry system of bookkeeping. So journal kya hai beta? It is nothing but the primary books of account where the transactions are recorded in terms of debit and credit by following the rule of double entry system of bookkeeping, which says that for every debit there is equal and corresponding credit. तो याद रखिए, ये आपको याद रखना है कि जर्नल का मतलब क्या है, कि आप इसको रिकॉर्ड करेंगे in terms of debit and credit, or these are the first hand transaction, these are recorded for the first time. And journal का utility बहुत है, because it can be produced as an evidence in the court of law. क्यों? क्योंकि आपने किसी को बेचा, किसी से खरीदा, तो किसी को देना है, किसी से आना है, तो ये सारा आपने रिकॉर्ड करके रखा है. सेम कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो इसी हिसाब से जर्नल दिया है. नाउ यू कैन सी दैट इन अ बिजनेस देयर आर ए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन अ डे. एम आई राइट? And all these transactions need to be recorded. Otherwise, if you forget them, how you come to know that how much to be paid, how much to be received, what to be purchased and what to be sold, what are the cash things and what are the credit things. That is how we record each and everything very properly in terms of journal. And what is that? Everyday business performs large number of transactions. Let's go through it quickly. These transactions cannot be remembered at a glance. ये याद रख सकते हैं क्या? जो हजारों लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं एक बिजनेस में, उसको याद नहीं रख सकते. सो इट इज बेटर टू राइट डाउन देम, जॉट डाउन देम. देयरफॉर दीज ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स. He keeps different accounting records. The number of books depends upon the size and nature of business and volume of transaction. But important books of account which must be maintained by every businessman are journal and ledger. बहुत सारे books of account maintain किए जाते हैं बेटा, लेकिन important क्या क्या है? एक जर्नल और दूसरा लेजर. लेजर का डेफिनेशन मैंने आपको दिया था. एन अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू डिफरेंट असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन. अगर मुझे जानना है कि मेरे बिजनेस में आज की डेट में कैश कितना आया, कितना गया और एट द एंड ऑफ द डे बचा कितना, तो मुझे कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए? कैश अकाउंट. अगर मुझे जानना है कि बैंक में बैलेंस कितना है और देखना है कि बैंक से कितना पैसा रिसीव हुआ और बैंक से कितना पैसा पे हुआ और आज की डेट में बैलेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है. एक बिजनेस का बैलेंस पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है. बिजनेस का, इंडिविजुअल का निगेटिव नहीं हो सकता, या तो पॉजिटिव या तो जीरो. एम आई राइट? सेविंग अकाउंट का बैलेंस या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो जीरो हो सकता है, लेकिन बिजनेस का या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव हो सकता है इन केस यू हैव टेकन अ लोन. एम आई राइट? तो ये अगर आपको जानना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट किस पे बनाते हैं? लेकिन जर्नल पे, बिकॉज जर्नल इज द बेसिक और प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स. अब जर्नल से सारी कैश की एंट्रीज उठाएंगे और लेजर में पोस्ट करेंगे. डेबिट वाली डेबिट साइड में, क्रेडिट वाली क्रेडिट साइड में, और आखिरी में देखेंगे कि डेबिट इज मोर देन क्रेडिट और क्रेडिट इज मोर देन डेबिट एंड व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश. सो दैट वे अराउंड इट इज देयर. आर यू गेटिंग मी? सो इसी तरह से हमें लेजर बनाना है. तो जर्नल और लेजर उन्होंने दिया है. दो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने जो बड़े इंपॉर्टेंट है. पहला है जर्नल और दूसरा है लेजर. व्हाट इज जर्नल? जर्नल इज अ प्राइम और प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम. आगे क्या दिया है? जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड टू क्लासिफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजैक्शन इन अ फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सब्सिक्वेंट एंट्रीज इन लेजर
जर्नल कीप्स रिकॉर्ड ऑफ डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो कुछ आपके बिजनेस में होता है वो सारा आप रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। इट इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को आप क्या बोलेंगे? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इसको मार्क करके रखिए बेटा, दिस इज कॉल्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। Very important here. When the journal transactions are recorded in the journal, it becomes a journal entry. Journal entries consist of the name, debit and credit involved in the financial transaction with a brief narration. Narration क्या होता है? Brief explanation of the transaction, which always starts with being. Being का मतलब क्या है? Time being I'm teaching here. Time being I'm teaching here. इसका मतलब है अभी के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, और थोड़ी देर बाद मैं पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा पता नहीं है ना? अभी आधे घंटे के लिए टाइम बीइंग आई एम हियर टिल 8 o'clock। 8 बजे तक मैं यहां पे हूं, 8 बजे के बाद पता नहीं मैं यहां पे रहूंगा या और कहीं चला जाऊंगा। बीइंग का मतलब क्या है? कि वो पर्टिकुलर टाइम पे ये हुआ है। इफ आई एम रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन से ऑन 29th of March 2022, तो मैं लिखूंगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन क्या लिखूंगा? बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। बीइंग का मतलब क्या है? कि ये वो टाइम पे घटना हुई थी, ये ट्रांजैक्शन वो टाइम पे हुआ था, एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ बीइंग। ये कभी भी शुरुआत कब से होता है बेटा? बीइंग। सो नरेशन इज नथिंग बट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। याद रखिए, नरेशन का मतलब क्या है? इट इज जस्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड विच ऑलवेज स्टार्ट्स विद द वर्ड बीइंग। फॉर भी ले सकते हैं या बीइंग भी ले सकते हैं। मॉडर्न मेथड फॉर बोलता है और ट्रेडिशनल मेथड बीइंग बोलता है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और बीइंग नहीं लिखा तो भी चल जाता है। इनटू ब्रैकेट यू कैन राइट डाउन गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, यू कैन राइट डाउन कैश परचेसेस, बिकॉज इट इज जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज दैट ट्रांजैक्शन, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। एंट्री समझ में नहीं आई तो उसको ब्रैकेट देख के समझ में आ जाएगी क्या हुआ था। हर एक को डेबिट क्रेडिट पता है क्या, लेकिन ब्रैकेट समझने देखने के बाद उसको ये तो पता चल रहा है being goods purchased for cash, being assets sold on credit, being assets sold for cash। ये सारा पढ़ के भी समझ में आता है कि क्या हुआ था, क्या खरीदा या क्या बेचा, कैश में किया या क्रेडिट में किया। तो या तो being लगाइए या तो नहीं लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट ओके? सो व्हाट इज नरेशन? नरेशन इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। एनी डाउट? साइदन्या, ईशा, सौरभ, narration क्या है बेटा? It is just brief explanation of the transaction which have happened and we are recording. So when the journal transactions are recorded in the journal, it becomes journal entry. Journal entry consists of the name, debit and credit involved in the financial transaction with a brief narration. Journal is a book in which the business transactions are recorded, first recorded in a chronological order. याद रखिए बेटा, journal क्या है? ऐसा बुक जिसमें आप ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हैं डेट के हिसाब से, and that is how it is called as the primary book of accounts। इसीलिए आप इसको क्या बुलाते हैं? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो जो मैंने हाईलाइट किया है वो आपने लिखना है बेटा, याद रखिए। जो हाईलाइट किए वाले लाइंस है ये आपने नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। जैसे ही आपने हेडिंग दिया उसके बाद ऑल दीज थिंग्स शुड बी रिटन इन द नोटबुक देयर। लेट अस गो फॉरवर्ड। जनरली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द ओनर और बिजनेसमैन फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये अलग अलग चीजें आप रिकॉर्ड करते हैं। ही मेंटेन्स प्राइमरी बुक्स एंड सेकेंडरी बुक्स। प्राइमरी मतलब जर्नल और सेकेंडरी मतलब लेजर, क्योंकि जर्नल बना तो उस पर लेजर बनता है, इसलिए प्राइमरी जर्नल है और लेजर सेकेंडरी है। प्राइमरी बुक्स इंक्लूड जर्नल एंड स्पेशल जर्नल विच इंक्लूड्स परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड सेकेंडरी इंक्लूड्स जर्नल लेजर, जिसको लेजर बोलते हैं। ये बुक्स क्या है, कैसे बनते हैं, ये आने वाले लेसन में अपन पढ़ने वाले बेटा। सो अभी के लिए हमें क्या देखना है? अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें जर्नल देखना है। और जर्नल देखिए क्या दिया है। द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम अगेन द ग्रीक। ओहो, फ्रेंच वर्ड आया यहाँ पे, ग्रीक नहीं आया है। सो ग्रीक को छोड़ दिया, फ्रेंच को पकड़ लिया। फ्रेंच वर्ड जॉर, जॉर मीन्स अ डे, देयरफॉर जर्नल मीन्स अ डेली रिकॉर्ड। जर्नल का मतलब क्या है आयुष? It is a daily record, and that way journal is defined. A journal contains a daily record of all business transactions, and hence it has been named so. As soon as the transaction take place, its debit and credit aspects are analyzed, and first of all recorded chronologically. Chronologically मतलब जैसे हुए वैसे।
अगर आप अप्रैल रिकॉर्ड कर रहे हो तो पहले 1 अप्रैल में सुबह क्या हुआ, दोपहर में क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, 1 by 1 transactions are recorded. फिर 2 अप्रैल, फिर 3 अप्रैल, फिर 4 अप्रैल. So chronology will be followed as per the date and as per the timeline. That is in the order of their occurrence taking place. Journal is a book of original entry or prime entry. फिर से वही दिया है, journal is a book of original entry or prime entry. इसको अंडरलाइन आपने करना चाहिए, लिखना चाहिए. और अगला डेफिनेशन उन्होंने दिया है, अ जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड टू क्लासिफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजैक्शंस इन अ फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सब्सिक्वेंट एंट्री इन द लेजर. जर्नल क्या है? इज नथिंग बट अ बुक एम्प्लॉयड टू क्लासिफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजैक्शन. ऐसी बुक जो आपने एम्प्लॉय की है टू क्लासिफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजैक्शन इन अ फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सब्सिक्वेंट एंट्री इन द लेजर, ताकि हम लेजर में रिकॉर्ड कर पाए. लेजर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ताकि हमने अलग अलग हेड दिया ना, जैसे हमने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश इज डेबिटेड, कैपिटल इज क्रेडिटेड, फर्नीचर इज डेबिटेड, कैश इज क्रेडिटेड, दैट वे अराउंड. एक को डेबिट देना है, दूसरे को क्रेडिट देना है. सो नेक्स्ट डेफिनेशन सेज अ जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन स्पेशलाइज्ड जर्नल्स. पहला ही ठीक है डेफिनेशन, और डेफिनेशन के लिए होती है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. अब इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी दिया है. आई थिंक दैट यू कैन लेट्स सी क्विकली व्हाट इज जर्नल्स यूटिलिटी. जैसे मैंने आपको बोला, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस. देखते हैं जर्नल का यूटिलिटी इन्होंने क्या क्या दिया है. दिस इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. प्रिंसिपल मतलब प्राइमरी, जिसके बिना जमेगा ही नहीं. It includes all types of accounts in the business like real, nominal and personal. सारे real, nominal और personal इसमें रहेंगे. It shows all necessary information regarding transaction. ये सारी necessary information regarding transaction बताता है. सबसे पहले क्या बताएगा बेटा? Date of the transaction. उसके बाद what is debit and what is credit. उसके बाद debit amount and credit amount. और उसके बाद ये एंट्री कहां पे की आपने लेजर में, उसका पेज नंबर होता है. That is called as ledger folio. क्या लिखते हैं? लेजर फोलियो मींस दिस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन विच पेज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट, ताकि इसका रेफरेंस लगे, क्योंकि बिजनेस में लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं. तो ये कौन से जाके अकाउंट में कहां पे बैठ गया, कौन से पेज नंबर पे, ये मैन्युअली पहले रिकॉर्ड किया जाता. आजकल ऐसे करने की जरूरत है क्या? आजकल तो सब कुछ सॉफ्टवेयर में है. आपने बस उसको बता दिया कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट कर दिया, वो सब कुछ ले लेता है. वो जर्नल ही बना लेता है, लेजर बना लेता है, उस पर ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स भी खुद ही बनाता है. इट इज अ प्रोसेस, फर्स्ट जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट्स. पहले मैन्युअली सब कुछ करना पड़ता था, और मैन्युअली फिर पेज नंबर लिखना पड़ता था कि ये जर्नल लेजर के कौन से इसमें गया. लोग खुशी से लिखते थे हजारों ट्रांजैक्शन, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं. आज जैसे ही पता चला सॉफ्टवेयर है, बोले कॉल करे मैन्युअल अभी, है ना. इसलिए कॉपी पेस्ट का जमाना है, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल होता है, फिर भी इंसान क्रिएटिविटी में पीछे. क्यों? कॉपी पेस्ट करने में उसका सारा एफर्ट निकल के जा रहा है, और खुद का प्रोडक्टिविटी तो कहीं पे है नहीं. सो दैट इज द प्रॉब्लम देयर. इट शोज ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन. ये जर्नल क्या बताता है बेटा? सारा नेसेसरी इंफॉर्मेशन बताता है जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है. नंबर 3, द जर्नल हैज डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस विद डिटेल्स अबाउट अकाउंट्स. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स विच इट्स टुक प्लेस. जो कुछ आपके इवेंट्स हुए, टेकन प्लेस हुए, वो सारा रिकॉर्ड करता है. द जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक in which all the day-to-day transactions are recorded first in chronological order, in debit and credit form and with amount of each transaction. जर्नल में हमें क्या रिकॉर्ड करना है? क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करना है, क्या डेबिट हुआ और क्या क्रेडिट हुआ, और उसका अमाउंट क्या है, उसके साथ हमें रिकॉर्ड करना है. अकाउंटिंग प्रोसीजर इज फॉलोड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स. आपने बेचा, आपने खरीदा, आपने पे किया, रिसीव किया, उसका प्रूफ क्या है? देयर आर वाउचर्स, there are source documents. इनको क्या बुलाते हैं बेटा? सोर्स डॉक्यूमेंट. सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जिसके बेसिस पे आपने बोला कि मैंने 10 करोड़ का खरीदा है, या मैंने 4 करोड़ का बेचा है. क्या है प्रूफ? क्या है? बिल है आपके पास, वाउचर है आपके पास, सोर्स डॉक्यूमेंट है. आपने क्रेडिट में बेचा, क्या प्रूफ है? आपने कैश में बेचा, क्या प्रूफ है? सो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड देयर वेरी प्रॉपर्ली. आर यू गेटिंग मी? So that is how this is recorded in terms of journal. The narration provides a brief explanation about the transaction. It helps to increase the clarity of every transaction. जैसे मनोहर कल जिसको डेबिट क्रेडिट नहीं आता, वो भी अकाउंट्स पढ़ रहा है, जर्नल एंट्री पढ़ रहा है, तो समझ में आ रहा है उसको. पहले नहीं समझ रहा उसको डेबिट क्रेडिट, लेकिन उसको ब्रैकेट देख के समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या खरीदा, इन्होंने क्या बेचा.
इन्होंने क्रेडिट में खरीदा या क्रेडिट में बेचा, बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन द नरेशन. इट हेल्प्स टू फाइंड एंड प्रिवेंट एरर्स, क्योंकि आप हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, डे वाइज, डेट वाइज, टाइम वाइज. सो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली. कुछ भूलने की जरूरत नहीं है और फ्रॉड होने की भी जरूरत नहीं है. इट हेल्प्स टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या बेटा? टोटल ऑफ ऑल डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट. ये देखिए, मतलब आप कुछ भी रिकॉर्ड कीजिए, दैट इज टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स. आप लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स. दिस वे अराउंड ऑल जर्नल आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड हियर. इस तरह से सारे जर्नल आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. एंड लास्ट, इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो ये कुछ उन्होंने जर्नल में दिया है. अब जर्नल का प्रोफार्मा देखिए बेटा, कैसे लिखते हैं देखिए. हमने ट्रेडिशनल मॉडर्न दोनों मेथड देखे, आपको याद होगा, पिछले कई लेक्चर में हम वही देख रहे हैं. सो हाउ टू रिकॉर्ड अ जर्नल? इट इज जर्नल ऑफ मेहता ट्रेडर्स. जर्नल ऑफ डैश मतलब नेम ऑफ द ओनर, नेम ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो जर्नल ऑफ मेहता ट्रेडर्स. उसके बाद क्या किया बेटा? उसके बाद आप और एक लाइन ऐड कर सकते हैं, फॉर द ईयर, फॉर द मंथ, फॉर द पीरियड. 1 महीने का बना सकते हैं, 3 महीने का बना सकते हैं, 1 दिन का बना सकते हैं, 1 साल का भी बना सकते हैं. एम आई राइट बेटा? सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गणेश ट्रेडर्स, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेहता ट्रेडर्स, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मनीष ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ September 2022. That way around you can record. कितने कॉलम्स है आप देख सकते हैं. नंबर 1 is date, नंबर 2 is particulars, नंबर 3 is LF. LF is nothing but ledger folio. ledger folio का मतलब क्या है? पेज नंबर, जहां से ये ट्रांजैक्शन उड़ के गया और वहां पे डेबिट और क्रेडिट बताया. एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट. से द ट्रांजैक्शन इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में. बराबर है क्या मेरा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब डेबिट हुआ कैश और क्रेडिट हुआ कैपिटल. उसका पेज नंबर यहां पे डालेंगे कि ये एलएफ क्या है, इसका लेजर फोलियो कहां पे है, पेज नंबर कौन सा है. मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मैनुअल में करते थे, आजकल ये कोई नहीं करता है. अभी हमें एग्जाम में लिखना है जर्नल एंट्री, इसलिए इसी तरह से लिखना है. सो डेट में क्या आएगा? ईयर, मंथ ऑब्लिक डेट. फॉर एग्जाम्पल सितंबर 2022 एक बार ही ऊपर डाल देंगे हम, उसको अंडरलाइन करेंगे, नीचे लिखेंगे फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर 7. क्यों? क्योंकि सब तो सितंबर 22 से बिलोंग करता है, सभी बिलोंग करता है सितंबर 2022. तो ऊपर सिर्फ सितंबर 22 डाल देंगे एक बार, उसको अंडरलाइन करेंगे और बाद में डेट, पहले 1, फिर 3, फिर 7, फिर 10, जिस तरह से आएगा उस तरह से. पर्टिकुलर्स में क्या करना है? नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड, फॉलोड विथ व्हाट? कॉन्सेंट्रेट हियर. यहां पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो बेटा. मेथोडोलॉजी है बस, बाकी कुछ टेंशन की बात तो है नहीं. मेथोडोलॉजी है थोड़ी सी. ये देखिए 2 किया यहां पे, ये 2 हाईलाइट हुआ. कैन यू सी द 2 हाईलाइटेड देयर? लेकिन ये 2 कैसे लिखा है? देयर इज सम स्पेस विच इज लेफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. जब भी आप ट्रांजैक्शन लिखते हैं, जब क्रेडिट लिखने की बात आती है तो क्रेडिट के पहले क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है और 2 के पहले स्पेस छोड़ना है थोड़ा. यहां पे देख सकते हैं, यहां पे थोड़ा स्पेस बाकी है या नहीं है बेटा? ये देखिए, कैन यू सी दिस स्पेस? यस, नीचे बताता हूं मैं आपको. एंड देन नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड और फॉलोड विथ बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल, बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर क्रेडिट. वट एवर इज द नरेशन इज टू बी रिटन. एलएफ में कुछ नहीं लिखना है, बनाने के लिए बनाना है बस. एलएफ में कुछ लिखना नहीं है, सबसे छोटा कॉलम बनाना है नाम का, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. डेबिट में डेबिट का अमाउंट लिखना है, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट लिखना है. यही उन्होंने दिया एक्सप्लेनेशन में, देखिए यू कैन सी हियर. डेट में क्या एंटर करना है? डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन. डेबिट में द अकाउंट टू बी डेबिटेड, गो बाय मॉडर्न मेथड और गो बाय ट्रेडिशनल मेथड. क्रेडिट में क्रेडिट का नाम, लेकिन क्रेडिट लिखते टाइम ध्यान रहे क्रेडिट शुरू होना है 2 के साथ और लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा स्पेस बचना चाहिए, थोड़ा स्पेस डाल के लिखना चाहिए. लेट मी शो यू हाउ टू राइट डाउन अ जर्नल एंट्री देयर. मैं अगर टेबल में बताता हूं तो आपको नीचे बेटर रहेगा. देन डेबिट क्रेडिट लिखने के बाद उसका नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल, व्हाटएवर. देन लेजर फोलियो नंबर में तो कुछ नहीं लिखेंगे, डेबिट में डेबिट का अमाउंट और बेटा क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट. और ये देखिए उन्होंने यहां पे एक आधा एग्जांपल दिया होगा जो मैं आपको बताता हूं इमीडिएटली. ये देखिए, दिस इज हाउ द जर्नल एंट्री इज रिटन माय डियर.
देखिए डेबिट कितने अकाउंट्स है स्टूडेंट्स? हाउ मेनी डेबिट अकाउंट्स आर देयर? 3. लैपटॉप, इनपुट CGST, इनपुट SGST एंड 2 बैंक अकाउंट. अब इनको बोलना क्या है? जब आप खरीदते तो GST आप पे करते हैं या रिसीव करते हैं बेटा? आप पे करते हैं. तो फिर बिजनेस के लिए परचेस पे जो GST भरा वो एक्सपेंडिचर हुआ या इनकम हुआ? बड़ी सिंपल बात है, एक्सपेंडिचर हुआ. और यही आप अगर बेच रहे हो तो सामने वाला GST आपको देगा. Am I right? तो अभी आपको देना तो गवर्नमेंट के है, लेकिन आप तो अभी रिसीव कर रहे हो उससे. जब गवर्नमेंट को देखेंगे तब की बात है. लेकिन आज के लिए क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? GST. सेल का GST आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में. व्हाई? बिकॉज इट इज योर इनकम. और परचेस का GST आप रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस. व्हाई? बिकॉज यू आर पेइंग इट आज यू आर परचेसिंग इट. Am I right? सेल वाला आप रिसीव कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को देंगे, वो बात की बात है. आज की डेट में तो आपका इनकम है. सेल के साथ आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST. आप बताएंगे कि बोलेंगे कि ये क्या है सर? CGST और SGST. जो भी GST आता है उसके कितने स्लैब्स है बेटा? 5. GST कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 5 रेट है GST का. नंबर 1 0. 0 is a rate because it can be changed at times. Second is 5. Third is 12. Fourth is 18 and last is highest, that is 28. और ये जो भी GST के रेट्स है बेटा, those are divided between the state and सेंट्रल गवर्नमेंट. आधा रेवेन्यू जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. मतलब 5% अगर हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया उस पर GST लगता है. आप देख सकते हैं खाना खाने के बाद नीचे 5% का GST लगता है. उस पर लिखा होता है 2.5% CGST एंड 2.5% SGST. मोबाइल खरीदते हैं तो 12% लगता है या 18 लगता है बेटा? मोबाइल खरीदते हैं तो कितना लगता है? 12 या 18? कितनी बार तो खरीदा होगा. Amazon, फ्लिपकार्ट, ये वो, और गए होगे तो शॉप से, वहां पे भी GST लगता है. वरना शॉप ओनर बोलता है बिल नहीं देता, GST देने की जरूरत नहीं है. मतलब मैंने लिया नहीं, तुमने दिया नहीं और मैंने लिया नहीं. मतलब उसका भी ब्लैक इनकम और तुम्हारा भी ब्लैक इनकम. तो ऐसे भी होता है, राइट? लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर रिकॉर्डिंग इट, दिस GST शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स इनटू CGST एंड SGST. फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप कुछ परचेस करते हैं तो GST इज एन एक्सपेंडिचर एंड हेंस इट शुड बी डेबिटेड इन टर्म्स ऑफ इनपुट CGST एंड इन टर्म्स ऑफ इनपुट SGST. खरीदते हैं तो दोनों इनपुट खरीदते हैं, आप परचेस करते तो आपको पे करना है. एक वाला इनपुट CGST और दूसरा वाला इनपुट SGST. CGST is for central goods and services tax, SGST is for state goods and services tax. बराबर है? तो खरीदते तो डेबिट करना है. और आपने कुछ गुड्स बेचे जिसपे आपको GST मिला तो ये आउटपुट CGST और आउटपुट SGST आधा आधा करना है और क्रेडिट में डालना है. Why? Because it is an income as you are selling. ये मैं आपको बताना चाहता हूं. तो 5% आएगा तो गणेश 2.5 होगा, 12 आएगा तो 6 होगा, 18 आएगा तो 9 होगा, 28 आएगा तो 14 होगा, और 0 आया तो कोई जरूरत ही नहीं है. लेकिन 0% भी एक रेट है, याद रखना. दिस इज चार्ज्ड ऑन इसेंशियल कमोडिटीज ऑन गुड्स ऑन विच गवर्नमेंट डजंट वांट टू चार्ज एनी काइंड ऑफ GST. जिसपे GST गवर्नमेंट चार्ज नहीं करना चाहता उसको 0% में डाल देता है. ऑल दीज आर कॉल्ड एज इसेंशियल थिंग्स. समझ में आया? ये ट्रांजैक्शन ऊपर दिए वाला फिर भी आपको बताता हूं, देख लीजिए बेटा क्या है ट्रांजैक्शन. देख सकते हैं, परचेस लैपटॉप फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी वर्थ ₹50,000. आपने लैपटॉप खरीदा है किससे? जलाराम भाई से. एंड एट 18% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक. तो नेम ऑफ द पार्टी तो दिया है, लेकिन साथ में बोला है कि पैसा आपने पे किया है, वो भी कैसे? थ्रू अ बैंक. वाई? थ्रू अ चेक. तो ट्रांजैक्शन कैश हुआ है क्रेडिट हुआ? कैश ही हुआ. क्यों? चेक तो दिया है बाबा. वरना लोगों को पार्टी दिख गई कि उनको लगता है कब इसको क्रेडिट में डालूं. भाई रुको, देखो और बाद में सोचो कि इसको कैश में डालना है या क्रेडिट में डालना है. ये तो कैश वाला है. व्हाट आर द अकाउंट्स इंपैक्टेड? अकाउंट इंपैक्टेड एज यूजुअल. नंबर 1, अगर GST को भूल जाते हैं तो पहला अकाउंट कौन सा इंपैक्ट होगा बेटा? अभी आपका नॉलेज बताइए जो आपने पढ़ा था. सबसे पहले फर्स्ट account, you are purchasing an asset, hence impacted is asset account and that is laptop account. And second account, आपने पैसे दिए या नहीं दिए? दिए. कैसे दिए? कैश या क्रेडिट? आपने कैश भी नहीं दिया, क्रेडिट भी नहीं दिया, आपने दिया एक चेक. मतलब सेकेंड अकाउंट इज
बैंक अकाउंट। ट्रेडिशनल से जाऊं या मॉडर्न से जाऊं, कैसे भी जाऊं कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो दो चीजें आपकी नॉर्मल हो गई, तीसरी चीज भी आती है, क्योंकि आपने खरीदा कैसे है, जीएसटी पे खरीदा है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला वट एवर यू परचेस ऑन जीएसटी, जीएसटी बिकम्स एन एक्सपेंडिचर, हेंस इट शुड बी डेबिटेड एंड इट शुड बी डिवाइडेड। इफ इट इज 1266, if it is 1899, if it is 28 1414, and if it is 5 it is 2.5 and 2.5. But if you sell the same, then it becomes output CGST and output SGST, which is credited as a part of income. तो यहां पे सिर्फ GST लिखता हूं बेटा, GST and further divided into input CGST and SGST, आधा आधा करेंगे और ये रिकॉर्ड करेंगे। चलो ट्रेडिशनल से चलते बेटा, साइदन्या, ईशा एंड सौरभ। लैपटॉप इज एन असेट, असेट इज अ रियल अकाउंट, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट एंड जीएसटी इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठा है, पहला ही क्वेश्चन, एक पर्सनल दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट सेज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बैंक रिसीव कर रहा है या बैंक दे रहा है, आपका बिजनेस है, आपने खरीदा, आपने चेक से पेमेंट किया, मतलब आपका बैंक पैसा दे रहा है। बैंक इज द गिवर, मतलब बैंक को क्या करना है, क्रेडिट करना है। लेकिन कैसे, पहले तो गुड्स का या लैपटॉप का प्राइस प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 18% है बेटा लैपटॉप पे, मतलब मोबाइल पे भी मेरे ख्याल से 18 ही होगा। 9 + 9 देख सकते हैं आप, ट्रांजैक्शन को उन्होंने अच्छे से डिवाइड करके दिया बेटा। 50,000 कॉस्ट है आपके लैपटॉप का, उस पे 18% जीएसटी, मतलब ये तो मैंने बहुत बार आपको बोला है कि किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो बड़ा आसान है। ये है 50,000, इसका एक जीरो काटो तो बचा कितना, 5,000। ये कितना परसेंट हुआ बेटा, ये हुआ 10%। यस और नो, 10% निकालना है तो बड़ा आसान है, एक जीरो काटो, कितना बचा, 5,000। अगर 5,000 10% है तो 20% कितना हुआ बेटा, 10,000। लेकिन हमें 20 चाहिए, 18 चाहिए, 18 चाहिए। 18 में से क्या करना पड़ेगा, 2% हटाना पड़ेगा। अगर 2% निकालना है तो मैंने और एक चीज बोली थी, किसी भी चीज का अगर 1% निकालना है तो 2 जीरो काटो, काटो 2 जीरो, कितना बचा, 500। 500 1% हुआ, मतलब 2% कितना हुआ बेटा, 1,000। बराबर है क्या। तो इधर 5 + 5, ये 10% 5 हुआ, मतलब ये 5,000 प्लस 5,000 तुम्हारे कैलकुलेशन के लिए कितना हुआ, टोटल 10,000 हुआ 20%, और 18 निकालना है तो 10,000 माइनस 1,000, कितना बचा, 9,000। बराबर है, 18% आया, 18 को डिवाइड करना है 9 में, सो 9,000 डिवाइडेड बाय 2, 4,500 सीजीएसटी, 4,500 एसजीएसटी, दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो 50,000 का आपका लैपटॉप, 4,500 का इनपुट सीजीएसटी, 4,500 का इनपुट एसजीएसटी, सारा मिला के आपने पेमेंट कितने का किया, 59,000 का। खरीदा तो 50 का, लेकिन पेमेंट किया 59,000। देखो, तुमने 50,000 की चीज खरीदी, तुम खुश है, 9,000 गवर्नमेंट ऐसे ही आके लेके गया जीएसटी के फॉर्म में, है ना। सो दैट इज हाउ इनकम टैक्स इज अ वेरी रिच अथॉरिटी, मेड बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो टोटल वैल्यू कितने का पे किया बेटा, 59,000 का। और जैसे मैंने आपको बोला, लैपटॉप सेज आई एम अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। लैपटॉप तो आ रहा है तो डेबिट करो उसको। देखिए बेटा कैसे लिखा है, लाइन को चिपक के लिखा है, आप देख सकते हैं बेटा। यहां पे मेथड ऑफ राइटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी हियर, जैसे ही डेट, ईयर, मंथ, डेट लिखा है, एक लाइन उन्होंने ड्रॉ किया है, उसको चिपक के लिखा है लैपटॉप अकाउंट डेबिट। डेबिट आखिरी में लिखा है, डेबिट जहां पे खत्म हो रहा है लगभग वहां पे एलएफ का लाइन खींचा है, am I right? दूसरा, being expenses, input CGST and input SGST both are debited because debit all expenses and losses of the business. इसलिए input CGST account debit 4,500, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500। अब ध्यान दो बोर्ड पे बेटा, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस दिख रहा है यहां पे, कैन यू सी दिस स्पेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यस देयर इज स्पेस। तो इस तरह से लिखना है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500। थोड़ा लाइन
छोड़ के चौथे इसमें बाद में लिखा है टू व्हाट, क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में तीनों का टोटल है, बिकॉज फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, इसलिए 50 प्लस 4,500 प्लस 4,500 दैट इज 59,000। और नरेशन देखिए, बीइंग परचेस्ड लैपटॉप और बीइंग लैपटॉप परचेस्ड बाय चेक एट 18% जीएसटी, मतलब सब आया। तुमने क्या किया, लैपटॉप किया, खरीदा। कैसे खरीदा, चेक देके खरीदा और जीएसटी भी पे किया। सो बीइंग लैपटॉप परचेस्ड एट 18% जीएसटी, बीइंग लैपटॉप परचेस्ड बाय चेक एट 18% जीएसटी, ये पूरा नरेशन है ट्रांजैक्शन का। और यहां पे ट्रांजैक्शन जैसे ही खत्म होता है एक लाइन ड्रॉ करना है, अगला ट्रांजैक्शन एक लाइन छोड़ के लिखना है, ताकि जर्नल एंट्रीज आर वेरी प्रेजेंटेबल। आपकी जर्नल एंट्री कैसे होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल। चलो ऐसा मान लेते हैं यही लैपटॉप आप बेचते हैं, यही लैपटॉप आप बेच रहे, अब खरीदने के बजाय एंट्री है सोल्ड लैपटॉप ऑफ 1 लाख। ध्यान से सुनना, ऑल स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल, सोल्ड अ लैपटॉप ऑफ रुपीज 1 लाख एट 18% जीएसटी। आपने 1 लाख का लैपटॉप बेचा और उस पर 18% की जीएसटी एंड रिसीव्ड कैश। कैश मिल सकती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल दिया आपने। तो जैसे ऐसा मान लेते हैं, सोल्ड लैपटॉप ऑफ रुपीज 1 लाख एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट रिसीव्ड थ्रू गूगल पे। कैश नहीं लेते, अमाउंट रिसीव्ड थ्रू गूगल पे। गूगल पे मतलब क्या हुआ, बैंक अकाउंट, इट इज अ डिजिटल वॉलेट, अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। बराबर है क्या, चेक बोलने की जरूरत नहीं, बैंक अकाउंट आया। अब फिर से वही अकाउंट है, लैपटॉप भी है और बैंक भी है। फर्क कहां पे पड़ा, वहां पे आप खरीद रहे थे, अब यहां पे आप बेच रहे हो, तो फर्क कहां पे पड़ा बेटा। फर्स्ट अकाउंट इज लैपटॉप अकाउंट, सबसे पहले लैपटॉप अकाउंट ही लेंगे एज यूजुअल। दूसरा बैंक अकाउंट नेचुरली, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज आउटपुट नॉट इनपुट नाउ, इट इज आउटपुट CGST and output SGST account. Laptop as usual an asset and a real account. Bank personal account. Output CGST SGST nominal account. 5 minutes देना बेटा. I know that the time is over, but give me 5 minutes please. Let me complete this. Now laptop goes out. लैपटॉप गोज आउट एंड डेबिट द रिसीवर. पैसा मिला आपको और लैपटॉप गया बाहर. सो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड. कैसे, डेबिट द रिसीवर. डिजिटल पेमेंट मिला गूगल पे में 1 लाख प्लस 18%. कितना मिला आयुष, 1 लाख का 18% सीधा 18,000. मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,000. बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,000 to laptop account only 1 lakh. To laptop account only 1 lakh and to output CGST 9,000 and to output SGST 9,000. Being laptop sold and amount received on Google Pay, or you can write down being laptop sold and cash received in bank and GST collected 18%. That will be the narration of this particular transaction, and that is how the difference, how input CGST and output CGST is going to differ. आप खरीद रहे मतलब आपके लिए एक्सपेंडिचर है बेटा, और आप बेच रहे मतलब आपके लिए इनकम है. आप खुद के पास जीएसटी नहीं रखने वाले, ये गवर्नमेंट को देने ही वाले बाद में, because GST is an indirect tax which is paid by you through an intermediary to the government. जब आपने लैपटॉप खरीदा तो आपने शॉपकीपर वालों को दिया, आपने फ्लिपकार्ट वालों को दिया, अमेजन वालों को दिया, वो खुद के पास रखेंगे या जीएसटी गवर्नमेंट को देंगे? गवर्नमेंट को. लेकिन दिया उन्होंने या तुमने? एक्चुअली आपने दिया है. सो इनडायरेक्ट टैक्स इज सच अ टैक्स व्हिच इज पेड थ्रू अ इंटरमीडियरी और अ मिडलमैन. इनडायरेक्ट टैक्स कैसा टैक्स होता है? जो आप एक मिडलमैन के थ्रू या इंटरमीडियरी के थ्रू देते हैं, आप डायरेक्टली नहीं देते गवर्नमेंट को. दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स आजकल कौन से इसमें आता है? जीएसटी में आता है. और डायरेक्ट टैक्स मतलब द टैक्स विच इज पेड ऑन इनकम. टैक्स विच इज पेड ऑन इनकम. जैसे इनकम टैक्स आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहे, इनकम टैक्स का फाइल जो आप भर रहे गवर्नमेंट को भर रहे, वहां पे और कोई मिडलमैन है ही नहीं, आप ही है बस.
The tax which cannot be avoided or which cannot be shifted to anybody else is called as direct tax. And indirect tax is a tax always which is paid through an middleman or intermediary. आप खाना खाने जाते हो, रेस्टोरेंट वालों को 5% दिया, वो खुद के पास रख रहा है या गवर्नमेंट को दे रहा है? गवर्नमेंट को दे रहा है. बट तुमने डायरेक्ट दिया क्या? दिया एक्चुअली तुमने है, बट उसके थ्रू दिया है. सेम वे व्हेन यू परचेस मोबाइल, लैपटॉप थ्रू अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, ये साइट से खरीदते तो आप उनको देते हैं, आपके बिहाफ पे वो ज्यादा डिपॉजिट करते हैं जाके. समझ में आया बेटा? Any doubt into this one? I hope you are getting this. Online students, I hope you are getting this. Please go through the content and remaining part we'll see it tomorrow. Thank you and have a wonderful evening ahead. Yes, to bank account. नहीं लिखते बेटा, ऐसा मेथड ही नहीं है. मैं मेथड तो बोल रहा हूं आपको. There is no such method. When we are saying that Y0 looks like this, we don't have any other objection for that. Same way it is a method of writing the transaction. Am I right? So you can write down CR there. CR लिखने का प्रोविजन ही नहीं है बेटा. हाँ, एक बार आप 2 नहीं लिखेंगे तो चलता है, लेकिन कुछ वहां पे स्पेस छोड़ के आपने क्रेडिट वाला अकाउंट लिखना चाहिए. इज दैट ओके? क्या बात है, इतना क्यों भाग रहा है तू? चलिए स्टूडेंट्स, हैव अ वंडरफुल इवनिंग अहेड. थैंक यू एंड बाय बाय.